हेलो बच्चों, पिछले लेसन में आप लोगों ने और ब्रीडिंग डिवाइसेस इत्यादि देखा था। अभी उसके आगे हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें हम कुछ स्लाइड्स भेज रहे हैं आपको ये समझने के लिए कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या क्या तरीका अपनाया जाता है। वो पिक्चोरियल उसका व्यू है। तो हमने 3 स्लाइड इसके लिए एक्स्ट्रा भेज रखी है, तो आप उसको देख लेंगे। अब हम लोग आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पर। The following events after double fertilization are collectively called post-fertilization events. First, development of endosperm from primary endosperm nucleus. Second, development of embryo from zygote. Third, development of seed from ovule. Last, development of fruit from ovary. Now we come to the endosperm development. Endosperm develops from the pen, that is the primary endosperm nucleus, which is a triploid structure, two polar nuclei and one male gamete fuse to form the pen. Endosperm develops first, followed by an embryo, means its development occurs prior to embryo development, because the cells of this tissue are filled with reserve food materials and are used for the nutrition of developing embryo. Thus, it provides assured nutrition to the developing embryo. तो इसीलिए एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट थोड़ा पहले होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट रहते हैं और न्यूट्रिएंट उन सेल्स के, एम्ब्रियो की सेल्स को काम आते हैं डेवलपमेंट के दौरान। कभी कभी 2 नंबर प्रश्न आता है इसमें। द पेन मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस undergoes successive nuclear divisions to give rise to free nuclei, and this stage of endosperm development is called the free nuclear endosperm. Subsequently, cell wall is formed and endosperm becomes cellular. तो शुरुआत में फ्री न्यूक्लियर होता है, बाद में चारों तरफ न्यूक्लियस की न्यूक्लिया की चारों ओर सेल वॉल बन जाती है, एंड दैट बिकम द सेलुलर एंडोस्पर्म. This division is followed by cytokinesis, and thus endosperm becomes cellular and is called cellular endosperm. The canal what we eat is cellular endosperm. नारियल में जो खाते हो, गरी खाते हो ना, वो सेलुलर एंडोस्पर्म है. The water of tender coconut is the center is कोकोनट के जो फ्रूट के बीच में सेंटर में जो लिक्विड होता है is free nuclear endosperm, and white canal in the outer part is the multicellular endosperm. The endosperm may be completely consumed by the developing embryo. For example, pea, beans, or it may persist in mature seeds. For example, coconut और बार्ली, वीट. आप देख सकते हैं कैसे प्लांट एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है. अभी इसको हम लोग थोड़ा देर बाद देखेंगे. तो बार्ली वगैरह में, इन सबों में न्यूट्रिएंट स्टोर होता है एंडोस्पर्म में, और बहुत सारे डाइकॉट्स में एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट. इसको अभी हम लोग थोड़ा देर बात करेंगे. नाउ वी कम टू द एम्ब्रियो डेवलपमेंट. सी द zygote form within the ovule divides by simple mitotic division. Firstly 2 cells are formed, then 4 cells, and finally you'll see there is a one basal cell form the suspensor, and the top cell forms the embryo proper. Now heart shaped embryo you may notice in almost all dicots. This is again this slide shows that fertilized embryo sac in which antipodal cells are degenerating,
synergids are degenerating and zygote divides. Those seeds vary a lot. The early stages of embryo development, that is embryogeny, are similar to both monocotyledons and dicotyledons. The previous slide showed the typical dicotyledonous type of embryo. The zygote gives rise to proembryo and subsequently to the globular, heart-shaped and mature embryo. A dicot embryo. A typical dicot embryo consists of an embryonal axis and two cotyledons. The portion of the embryonal axis above the cotyledon is the एपिकॉटल, मतलब जो एक्सिस होती है, कॉटलिडन्स दो निकले रहते हैं, उसके जस्ट ऊपर वाला पोर्शन जो होता है उसे कहलाता है एपिकॉटल, विच टर्मिनेट्स विद प्लूमोल और स्टेम टिप. द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटलिडन्स, मतलब कॉटलिडन के जस्ट नीचे वाला सिलिंड्रिकल पोर्शन पार्ट इज हाइपोकॉटल दैट टर्मिनेट्स at its lower end in the radicle or root tip. तो ऊपर shoot tip और नीचे root tip. The root tip is covered with root cap. A typical monocot embryo. The monocot embryo bears one cotyledon. That is why it is known as monocotyledonous. In grasses, the cotyledon is called scutellum. This is situated towards one side of the embryonal axis. 11th क्लास में आपने देखा था ना क्रॉस वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सीड, तो एक तरफ देखा था आपने एंडोस्पर्म होता है और बीच में शील्ड की तरह स्कोटिलम होता है, उसके एक तरफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक तरफ स्टोर्ड फूड मटेरियल. At its lower end, the embryonal axis has the radicle or root cap enclosed in it in an undifferentiated sheath called coleryza. उसके ऊपर छोटे छोटे पतले पतले शीथ कवर्ड रहते हैं, उसको कवर किए रहते हैं रेडिकल को, जिसको हम कोलराइजा कहते हैं. द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कोटिलम, जहाँ पर स्कोटिलम अटैच्ड है उसके ऊपर वाला पोर्शन इज द एपिकॉटल विच हैज़ अ शूट एपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोडिया enclosed in a hollow foliar structure, the coleoptile. ऊपर जैसे इधर नीचे रूट की तरफ कोलराइजा, ऊपर शूट की तरफ कोलियोप्टाइल. आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों एम्ब्रियो को. बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आता है, कभी कभी तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आज सिंपली डायग्राम लेवल डायग्राम ड्रॉ करो या फिर कंपैरिजन भी करो. तो दोनों मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियो स्लाइड में दिखाया गया है. You can compare the scutellum and two cotyledons in dicot and one that is a scutellum in monocot. फिर कोलराइजा एंड कोलियोप्टाइल इन द मोनोकॉट. और यहाँ पर हाइपोकॉटल और एपिकॉटल प्लूमूल जो होता है रेडिकल आसानी से आप देख सकते हैं. Now we come to the next structure, that is the seed. These are the final products of sexual reproduction. लास्ट में सीडी बनता है, यही मेन मोटो था रिप्रोडक्शन का. These are commonly known as fertilized ovule. The seeds are produced in the fruit. A typical seed consists of seed coat, cotyledons and an embryo axis. तो क्या क्या हुआ, सीड कोट चारों तरफ से और एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटलिडन्स, यही मेन चीज़ होता है सीड के अंदर. सीड्स में स्टोर फूड मटेरियल्स फॉर फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म एज इन मोनोकॉट्स, wheat, corn, custard, etc. and are called as albuminous or endospermic seeds. देखा हम लोगों ने, आटा के रूप में खाते हैं ना हम लोग एंडोस्पर्म, चाहे मक्का का सीड हो, चाहे वो व्हीट का सीड हो, बार्ली का सीड हो, कैस्टर के सीड में ऑयल के फॉर्म में होता है. तो दीज आर द एंडोस्पर्मिक सीड्स, या इन्हीं को कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स. इन डाइकॉट्स लाइक पीस, ग्राउंड नट,
sunflower etc. The endosperm is used up. डेवलपमेंट के दौरान ही क्या होता है, वो यूज्ड अप हो जाता है. फूड इज स्टोर्ड इन कोटिलिडन्स, और ऐसे में भविष्य के लिए जो फूड कहाँ होता है, स्टोर होता है कोटिलिडन्स में. एंड आर कॉल्ड नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. तो डाइकोट like peas, groundnut, sunflower etc. The endosperm is used up during embryo development. Food is stored in in cotyledons and are called non-albuminous or non-endospermic seed. Well, you can well differentiate between endospermic and non-endospermic. In some seeds like black pepper and beet, the nucleus is not completely used up and a thin layer of it persists. This thin layer is known as perisperm. इसे क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं. वैसे बाकी के सीड्स में न्यूक्लियस भी यूज्ड अप हो जाता है. आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. सीड डिफरेंट सीड्स दिए हुए हैं, मोनोकॉट सीड, डाइकॉट सीड्स दिए हुए हैं, और इसमें कुछ तरह के फ्रूट्स दिए हैं जिनके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे. चेंजेस इन द सीड्स ड्यूरिंग मैच्योरिटी. मैच्योरिटी के दौरान क्या क्या परिवर्तन आते हैं सीड्स में. पहला है द इंटेगमेंट्स कन्वर्ट्स इनटू हार्ड एंड टफ सीड कोट. जो इंटेगमेंट थी ओव्यूल की, वो किस में चेंज हो गया, सीड कोट में. द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ माइन्यूट पोर इन द सीड कोट. जहाँ माइक्रोपाइल थी ना, वो स्टिल माइन्यूट सीड पोर के रूप में स्टिल रह जाती है, बची रहती है. दिस फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन. जर्मिनेशन के टाइम यहीं से आसानी से पानी और ऑक्सीजन एंटर करता है. द सीड लूजेज इट्स मोस्ट ऑफ द वाटर एंड बिकम ड्राई. इट कंसिस्ट ऑफ 10 to 15% मॉइस्चर बाई वेट. 10% to 15%, मतलब इतना ही बचता है पानी, बाकी सब निकल जाता है. Almost they are dry. The general metabolic activity of embryo slows down greatly. बिल्कुल लगभग शून्य हो जाती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी. The embryo may enter a state of inactivity called dormancy. Dormancy कहते हैं उसे. स्लीपिंग कह सकते हो आप, पीरियड कह सकते हो उसका, स्लीपिंग पीरियड, डॉर्मेंट पीरियड. With the help of this dormant period, seed overcome the adverse conditions for germination. भाई अगर मान लो जर्मिनेट कर गया, उसके फेवरेबल कंडीशन नहीं तो मर जाएगा. इसी से बचने के लिए क्या करता है, वो डॉर्मेंट बना रहता है. जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो स्प्राउट करेगा. जैसे जो जाड़ों में स्प्राउट करता है, गर्मियों में चुपचाप बैठा रहेगा, और जो गर्मियों में स्प्राउट करता है, जाड़े भर चुपचाप बैठा रहेगा, एंड सो ऑन. हम लोग आते हैं फ्रूट फॉर्मेशन पर. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट. दस फ्रूट इज राइपेंड ओवरी. फ्रूट को हम क्या कहते हैं, राइपेंड ओवरी कहते हैं. द सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन गो साइमल्टेनियसली. मतलब सीड का बनना और फल का बनना दोनों ही साथ साथ चलता रहता. द ओवरी वॉल टर्न्स इनटू फ्रूट वॉल कॉल्ड पेरिकार्प. जो ओवरी की दीवार है किस में चेंज होती है, फ्रूट वॉल में, उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं. 11th हम लोगों ने पढ़ा था कि इट मे बी ऑफ डिफरेंट लेयर इन सम ऑफ द फ्रूट्स. याद होगा, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प वगैरह वगैरह. The fruits may be fleshy or as in guava, mango, papaya, etc. or dry as in mustard or peas. When other floral parts take part in fruit formation along with the ovary, such fruits are called false fruit. As thalamus takes part in fruit formation in cashew nut, apple, strawberry. तो इन सबों में ओवरी तो रहती है, साथ साथ में थैलमस भी फ्रूट बनाने में काम आता है. तो ऐसे फ्रूट्स को कहते हैं फॉल्स फ्रूट. ऐसे फ्रूट्स को क्या कहते हैं हम, फॉल्स फ्रूट कहते हैं. और व्हेन ओनली ओवरी टेक्स पार्ट इन फ्रूट फॉर्मेशन, सच फ्रूट इज कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट.
तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, जब केवल ओवरी पार्टिसिपेट करती फ्रूट बनाने में तभी वो ट्रू फ्रूट है, अदरवाइज कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट अगर फ्लावर का है तो देन इट इज़ द फॉल्स फ्रूट। If fruit formation occurs without fertilization, such fruits are called as a parthenocarpic fruits. Generally, all seedless fruits like the seedless grapes and many more fruits, they are the parthenocarpic. By the use of growth regulators, we can create the parthenocarpic fruits. Now, advantages in producing seed by plants. आखिर में सीड बनाने का क्या लाभ प्लांट्स को मिलता है? फर्स्ट है, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। न कुछ को अगर छोड़ दें तो ज़्यादातर में पानी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, तो निश्चित है सीड सेटिंग होना निश्चित है। सेकेंड है, सीड्स हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट। आपने देखा होगा ना, जिसको हम लोग कॉमनली कहते हैं बुढ़िया कहते हैं ना, उड़ता रहता है, समारा होता है, वो सब उड़ते रहते हैं, ये सीड दूर दूर तक चले जाते हैं, कई बार हुक की तरफ फंस जाते हैं, तो इससे वो न्यू हैबिटेट में पहुंच जाते हैं। दे हैव एनफ स्टोर्ड फूड फॉर यंग सीडलिंग्स टिल दे बिगिन टू डू फोटोसिंथेसिस। सीडलिंग्स जब निकलेगी, जब तक हरी होगी और अपना फोटोसिंथेसिस करेगी, तब तक जो भोजन स्टोर होता है सीड में वो काम आता है सीडलिंग के। द हार्ड सीड कोट प्रोटेक्ट द यंग एम्ब्रियो विद इन इट। जो हार्ड सीड कोट होती है वो एम्ब्रियो को बचाती है। एज द सेक्सुअल प्रोडक्ट हैव मोर चांस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन नेसेसरी फॉर फ्यूचर एडेप्टेबिलिटी, जरूरी है। और इससे ऊपर above all these, our food supply throughout the year is only possible because of dehydrated and dormant seeds. Seed is the basis of our agriculture. अगर सोचो, इमेजिन करो सीड ना हो तो आप खेती कैसे करोगे? अगली खेती कहाँ से होगी आपकी? अब हम लोग आते हैं एक दूसरे फिनोमेनन में जिसको कहते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। In some plants species, seed formation occurs without fertilization. This mechanism of seed formation is called as apomixis. बिना फर्टिलाइजेशन के देखा ओव्यूल चेंज नहीं होता सीड में, लेकिन ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जहां पर बिना फर्टिलाइजेशन के सीड सेटिंग होती है और इसे क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस। फॉर एग्जांपल, सम स्पीशीज ऑफ एस्टरेसी एंड ग्रासेस। एस्टरेसी बच्चे जो तुम्हारा मेरीगोल्ड फैमिली होती है वही एस्टरेसी है। Thus, apomixis is a kind of asexual reproduction that mimic the sexual reproduction. कि asexual क्यों है? क्योंकि उसमें फ्यूजन नहीं हो रहा है गैमेट का, लेकिन वो सेक्सुअल स्ट्रक्चर चूंकि चेंज हो रही है, इसलिए उसको मिमिक्री कहते हैं ना, मिमिक्री ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगेन, thus apomixis is a kind of asexual reproduction that mimic the sexual reproduction, नकल करता है। There are different ways of apomictic seed formation, कई तरह से बनते हैं। One may be the development of diploid egg cell into seed, or some of the nuclear cell may enter the embryo sac to develop embryo। चाहे वो कई बार होता है डिप्लॉइड सेल एग सेल होती वो बन जाती है, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एग सेल का होता है, या कई बार क्या होता है न्यूक्लियस की सेल्स एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस जाती हैं और बिहेव एज अ एम्ब्रियो। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी। अगर सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो रहते हैं, नॉर्मली क्या होता है एक सीड में एक ही एम्ब्रियो होता है ना, लेकिन कई बार देखा गया है मैंगो वैराइटीज़ में और साइट्रसेस में कि एक सीड में एक से अधिक एम्ब्रियोज मिल जाते हैं। सच फेनोमेनन इज नोन एज पॉलीएम्ब्रियोनी। अब होता क्या है कि न्यूक्लियर सेल्स प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक टू फॉर्म मेनी एम्ब्रियोज इन वन ओव्यूल।
बगल बगल से प्रोटीन मतलब घुस जाती हैं उसमें, एम्ब्रियो साइक में आ जाती हैं और बिहेव द जाइगोट और नया एम्ब्रियो बना लेंगे। ध्यान रखना कोई इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। न्यूक्लियर सेल कैसी है, डिप्लॉयड सेल है और वो एंट्री कर जाती है। तो अगेन एपोमिक्सिस है और पॉलीएम्ब्रियनी दोनों का एग्जाम्पल है। रिसर्चेस आर गोइंग ऑन टू डेवलप हाइब्रिड सीड्स इनटू एपोमिक्टिक सीड to reduce the cost of hybrid seeds, but so far no success has been achieved by our scientists. लगे हुए हैं क्योंकि बेटे हाइब्रिड सीड्स को हर बार तैयार करना पड़ता है और वो कॉस्टली अफेयर हो जाता है। अगर हम हाइब्रिड सीड को दोबारा बोएंगे तो ड्यू टू वन जेनेटिक फिनोमेना उसमें फिर से वो प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है। अगर ये हाइब्रिड सीड का एपोमिक्टिक सीड बन जाए तो बार बार हमें हाइब्रिड सीड तैयार नहीं करना पड़ेगा। रिसर्चेज जारी हैं लेकिन अभी तक कहीं दूर दूर तक कोई सफलता नज़र नहीं आ रही है। तो इस तरह से ये था चैप्टर के बारे में। अब आप क्या करोगे, जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं वो सारे सॉल्व करोगे और प्लस बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ईमानदारी से इसको करोगे। और हम कभी भी किसी से मांगेंगे को दिखाने के लिए तो आपको व्हाट्सएप पर या किसी उस पर देना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।